for the time has come, for there is a great awakening and there is a great shakening. Through all of you, welcome, especially Pastor Thomas, wonderful, humble man of God. Thank God for him. Also for Dr. Ravi, making all efforts. Welcome. And we have Aditi right now in on the front line next to Pastor Thomas. You're being seen. May the anointing brush over. Yes, Thank you. Aditi, Thank you. show me your Yes. hand. Thank you. Yeah. Thank you. And Thank you. all the beautiful sons and daughters that can be seen here, and the many more who are coming in. Also, Anil Soni, you have here from joining us from Thailand. Show your hand. Anil, haath dikhaiye. He's my son in Thailand now. Then I have all the others here. Welcome the translator, Joyce. All beautiful, all alert and awake. Ma, here is my one friend. Thank you, Ma. Thank you. Where, Vicky? Who's your friend? Let me see. Dhadka? हाँ? अच्छा, जो black टोपी पहने हुए हैं? Yes, from Odisha. Orissa से. Yes. Wow. Welcome, brother. Welcome, Orissa. He is Vicky Mahi's friend. Beautiful. Then we have Vandana, Nisha. नाम क्या बताया बेटा आपका ओडिशा से? नाम क्या है? John Mark. John Mark. Pastor John Mark. Very nice. Very good. Very good. Yes, ma'am. Welcome to the platform of Delhi from Orissa. Thank हम लोग ओडिशा में भी है, आपको पता है, नेपाल में भी, हम हर एक राष्ट्र में होने वाले हैं, हर जगह. तो Yes, स्वागत है आपका. Thank you. Yeah, Albert, Nisha, and Delaney, Bharti, Neha. Oh, Archana from Thailand. Here is Archana, Mr. and Mrs. Soni. दोनों जन एक साथ हाथ उठाए ताकि वो लोग भी आपको देख सके. Archana. And we have Anil Soni there. Beautiful couple. One in Thailand, one in India, Delhi. And welcome, स्वागत है आपका. So, who else is there? Nina, Alicia. Alicia, I want to see you on the screen. Rubina, Manisha, Minakshi, all on the screen. All the sons and daughters on the screen. You have been told about this meeting. You have to be available there. We don't want to see blank posters for no reason. You're really not able to make it. You're excused. Alicia, where is Sudesh auntie? Where? I can't see it. किधर है? Second page पे? Where? I can't see her. Oh, here, Archana. Yeah, Sudesh भी है. She is my son. She's also my daughter. She's my daughter. She loves the Lord. Wonderful. Sudesh, स्वागत है तुम्हारा. और ऐसे ही बने रहना कल भी 7 बजे शाम में. Yes, Poonam Singh. Alicia, looking beautiful. Eva Wambul from UAE. She's from the UAE, Abu Dhabi. Dubai or Abu Dhabi? Dubai, right? Dubai. Dubai. She's from Dubai, who is here. And Rubina is here. Tessim, show yourself. Yeah, this is Tessim Makandar. Joy to see you. Also, Gulbarga is there. So all from different places. We welcome you all in the name of Jesus. Over to you. Amen. Thank you. Glory to God. Hallelujah. Thank you. It's good to see you. So we're going to start with the opening prayer. Yeah, so we're going to call on Pastor Poonam. Pastor Poonam is going to lead us in the opening prayer. And I want us to know that this meeting, day 2, is also live streaming on Facebook.
So we can see it on the Apostolic Prophetic Foundation Church Facebook page. We can also watch it also on the Ministry of Christ Facebook page. See? And also some individual outside the countries are also watching live from Mexico, from Guatemala, from US, from Africa. They're watching this movie live, right? So, Joyce. yeah, so thank you. So let's call on Pastor Poonam. Yeah, Pastor Poonam. Lead us in open. Just बोलना चाह रही हूँ कि ये लाइव भी है, तो जो लोग आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार होंगे उन्हें आप लाइव बुला सकते हैं फेसबुक पर, एमओसी पर है, APFCI नहीं, अपोस्टोलिक प्रोफेटिक फाउंडेशन पर भी है। तो जो लोग यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं और जूम दूसरे टाइमिंग में, वो लोग भी डायरेक्टली फेसबुक पर भी और एमओसी पर भी देख सकते हैं, अपोस्टोलिक प्रोफेटिक फाउंडेशन पे भी देख सकते हैं। तो ये लाइव है वहां पर भी। नाउ जॉयस, गेट रेडी, ओके, फॉर ट्रांसलेशन। या गो अहेड। Yeah, Pastor Poonam, go ahead. Thank you. यस, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस शाम के समय में पिता हम आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। पिता परमेश्वर की प्रभु, आज के दिन इस समय पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी जो कुछ भी आज आप हम पर रिवील करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर, और आपका वो प्रकटीकरण, वो रेवलेशन पिता परमेश्वर, यीशु मसीह कि वो सिर्फ एक प्रभु नहीं है, सिर्फ एक परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो एक मसीह भी है पिता परमेश्वर। उसको और भी गहराई से समझने के लिए, उसे जानने के लिए पिता परमेश्वर, हम सब की बुद्धि और समझ को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो गहराई पिता परमेश्वर, वो जो आप हम पर प्रकट करना चाहते हैं इस समय प्रभु जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को खोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी। एक एक की जितने भी भाई और बहन आज इस समय पिता परमेश्वर आपके इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी समझ खुले पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो स्वर्गीय बुद्धि से भर जाए पिता, स्वर्गीय प्रकाशन से भर जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो कुछ भी बीज हमारे अंदर बोया जा रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमारे ऊपर उजागर किया है पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही हम औरों को भी ये सुसमाचार का भेद पिता हम बता सके, उन पर भी प्रकट कर सके पिता परमेश्वर, और ये चेन इसी प्रकार चलती रहे पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी के छोर तक पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब तक आपका ये सुसमाचार प्रभु जी जगत के अंत तक नहीं पहुंच जाता पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा को आपकी अगुवाई में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। Amen. Amen. Yeah, thank you so much, Pastor Poonam. That's so deep. Yeah, Pastor Joyce, you can unmute your microphone for translation. Yes, Pastor. I will. Yeah, so we want to go back again to the book of Matthew for the scriptures for foundations for day 2 meeting. Matthew chapter 24, verse 3 to 5. Matthew chapter 24, verse 3 to 5. आइए हम अपने दूसरे दिन की शिक्षण को शुरू करते हैं, और जो हमारी नींव है इस शिक्षण की वो है मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 3 से लेके 5 आयत तक। Yeah, I read, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, "Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of your coming and of the end of the world?" And Jesus answered in verse 4 and said unto them, "Take heed that no man deceive you.
For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Amen. So we can Amen, see amen. seriousness. Yeah, please, you can read in हिंदी या in जब वह English. जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। Amen. Amen. So we can see the seriousness of understanding the clarity of the gospel. ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम सुसमाचार की उस गंभीरता को समझते हैं। Because when Priscilla and Aquila were listening to Apollos preaching in the synagogue, क्योंकि जब प्रिस्किला और अक्विला अपुल्लोस को सुन रहे थे, जबकि वो एक यहूदी जो मंदिर था वहां पर उपदेश कर रहा था, if they did not understood what the gospel of the Bible is, they would have been deceived by the charismatic gesture and the oratic preaching of Apollos. अगर प्रिस्किला और अक्विला को सुसमाचार के बारे में ज्ञान नहीं होता तो हो सकता है कि वो अपुल्लोस के उस बड़े ही शानो शौकत से और जिस प्रकार से वो प्रीच कर रहा था, जिस प्रकार से वो संदेश दे रहा था, उससे हो सकता है वो भरमाए जाते। Because Apollos was talking from the Bible, he was even mentioning the name of Jesus. क्योंकि अपोलोस केवल बाइबल से ही शिक्षण दे रहा था और वो यीशु मसीह का नाम भी बीच में ले रहा था। But because they understood the color, the clarity of the gospel, they were able to discern that what Apollo was preaching was a good message, but it does not have the revelations of the gospel. तो क्योंकि प्रिस्किला और अक्विला उस सुसमाचार के बारे में, जो सही सुसमाचार है, उसके बारे में जानते थे, इसी वजह से जब अपुल्लोस वो जो एक अच्छी खबर वो भी सुना रहा था, बाइबल में से ही वो प्रचार कर रहा था, लेकिन प्रिस्किला और अक्विला उसके द्वारा भरमाए नहीं गए और वो सच को जानते थे। So the gospel message is not a good message, but is life. तो जो सुसमाचार है वो कोई एक अच्छी खबर नहीं है, कोई वो अच्छा संदेश नहीं है, पर वो जीवन है। It transcends goodness. It transcends beautiful message. It's life. वो जो है बहुत ही सुंदर मैसेज है और वो एक जीवन को प्रदर्शित करता है। And the purpose why we having this daily meeting is not just to inspire ourselves or encourage ourselves alone. The goal is for the world evangelizations of my life and the whole India and the Asia. तो इस शिक्षण का उद्देश्य केवल यही नहीं है इस सुसमाचार को जानने का कि मैं अपने आप को उत्साहित करूं, वरन इसका उद्देश्य यह है कि पूरे इंडिया में, पूरे देश में हम सही सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। So the gospel must save my life before I can go out to save others with the gospel. इसीलिए सुसमाचार पहले मेरे जीवन को बचाना चाहिए, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं और दूसरों को सुसमाचार सुनाऊं और उनके जीवनों को बचाऊं। So I want us to open our heart. Let's open our eyes and pray to God. Say, Lord, open my understanding to understand the scriptures. तो आइए हम अपने आंखों को खोलें और हम अपने हृदय को खोलें, ताकि हम ये प्रार्थना कर सके कि परमेश्वर हमारी समझ को खोले कि हम वचन को समझ सकें। So today we want to continue in lecture 2, which I always tell us that it's not a lecture, but it's God speaking to us. और इसलिए अब आइए हम चलते हैं अपने दूसरे दिन के शिक्षण में, उस उपदेश में, और जैसा मैं बोलता हूँ कि ये केवल उपदेश नहीं है, बल्कि एक सुसमाचार और एक अच्छी खबर है। So we're going to call on also missionary Nina from South Korea to continue this message with us today. So अब मैं मिशनरी नीना को मैं स्वागत करता हूँ अपने बीच में कि वो आए और हमारे दूसरे दिन के इस उपदेश को हमारे बीच में शेयर करें। Yeah, let's welcome missionary Nina. Yeah. Welcome. Amen. Glory to God. Amen. Thank you so much. And it's, again, I'm very happy to see you all. मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर। It's my great privilege and honor to share
the gospel and share the revelation of Christ with you. और ये मेरा बड़ा ही अहोभाग्य है कि मैं आपके साथ में यीशु मसीह की सच्चाई को और उस सुसमाचार को मैं आपके साथ बांट सकूं। So yesterday, God allowed us to see different verses of the Bible to really see that Jesus is the Christ. This is the very purpose of the Bible. और कल हमने ये वचन में से हमने ये पढ़ा और ये सीखा कि यीशु ही मसीह है और बाइबल का जो एक पूर्ण उद्देश्य है वो यही है। And we also saw that all the apostles and early church members, they preached this one message. और हमने ये भी देखा कि सभी प्रेरितों ने और प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों ने भी केवल यही एक संदेश का प्रचार किया। And also this is the very definition of the gospel, that Jesus is the Christ. और सुसमाचार की एक्चुअल में परिभाषा ही यही है कि यीशु ही मसीह है। But as long as these Christians, as long as they attend church, they will not deny that Jesus is the Christ, right? और जब तक लोग चर्च में आते हैं और उसको अटेंड करते हैं तब तक वो ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यीशु ही मसीह है। There is no Christian who is not aware of this word Jesus Christ. और ऐसा कोई भी मसीही नहीं होगा जो इस शब्द से यीशु मसीह शब्द से जो अज्ञान होगा। And even non-believing people, they have heard about this name. इवन जो लोग अविश्वासी जन हैं उन्होंने भी इस नाम को सुना है। But the thing is, we are understanding this one simple sentence in very different ways. लेकिन केवल फर्क इतना है कि हम इस नाम का जो अर्थ है वो बहुत ही अलग तरीके से सीखने जा रहे हैं। I truly pray that as we go through these 12 lectures, may God allow us to understand the meaning of Jesus being the Christ according to the Bible. मैं अपने हृदय से सच में प्रार्थना करती हूँ कि जैसे जैसे हम शिक्षण में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर हमारी समझ को खोले कि हम ये जान सकें कि सच में यीशु ही मसीह है, इसका अर्थ क्या है। So Jesus is the Christ. यीशु ही मसीह है। So Jesus is the name and Christ is the office. यीशु जो है वो नाम है और मसीह जो है वो एक कार्यालय है। So for us to understand what it means that Jesus is the Christ, और हमें ये समझना है कि जो नाम है कि यीशु मसीह है, we first need to understand what is the meaning of the Christ. हमें पहले ये समझना होगा कि क्राइस्ट का क्या मतलब है। But understanding meaning of the Christ comes after this. We first need to understand why we need a Christ. और क्राइस्ट का मतलब जानने से पहले हम ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि हमें क्यों जरूरत है क्राइस्ट की। Because only when we understand why we need a Christ, then meaning of the Christ and Jesus being the Christ would come to us in a very meaningful way. और जब हम ये पहले जानेंगे कि हमें क्यों जरूरत है क्राइस्ट को जानने और समझने की, तभी हम क्राइस्ट का क्या मतलब होता है इसके बारे में अच्छी प्रकार से जान सकेंगे और समझ सकेंगे। And to understand why we need a Christ, we first need to understand the problems of mankind. और हमें क्राइस्ट की जरूरत क्यों है इससे पहले हमें मनुष्य जाति की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमें कुछ आपस में विचार करना होगा। And to understand our problems, we need to first understand how was our original state. और ये जानने के लिए कि हमारी समस्याएं क्या हैं, पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। Because when we see how we were created originally, then we'll be able to understand what we have lost. और जब हम पहले कि हमने क्या खोया है उसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में जो हम प्रारंभिक रूप में बनाए गए थे, जब हमारा सृष्टि हुई थी तो हम कैसे थे और किस प्रकार से हमारी सृष्टि हुई। That's what we're going to talk about today, how we are created as the blessed being. और यही आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम किस प्रकार से हमारी रचना हुई कि हम एक आशीषित मनुष्य थे। Let's open Genesis chapter 1 verse 26 and 27. आइए मेरे साथ खोलें आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत, जहां ऐसा लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन। So God has created us in His image, in His likeness. अतः हम यहाँ से ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Does it mean that He has eyes and nose and mouth like us? क्या इसका ये मतलब है कि परमेश्वर के भी आंखें हैं, नाक है, मुंह है हमारी तरह? Would He look like Indian or Korean, or what nationality would He have? क्या वो एक भारतीय की तरह लगता है या कोरिया के व्यक्ति की तरह लगता है? उसकी क्या नागरिकता क्या है परमेश्वर की? If you look at John chapter 4:24, it says God is spirit. अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय और उसके 24वें पद में देखें तो हम वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। So when God created us in His image, that means we are also created as the spiritual beings. तो जब हम ये पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं आत्मा है और हम उसकी स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हम भी एक आत्मिक प्राणी हैं। It was actually very special. और हम लोग बहुत ही विशेष हैं। Because when God created the other creations and other animals, क्योंकि जब परमेश्वर ने दूसरे जानवरों को और दूसरी सृष्टि को बनाया, He did not make this kind of expression. वो उसने इस तरह के अभिव्यक्ति को नहीं बनाया। And if you look at verse 26 closely, it says, "Let us make mankind in our image." And we can see that this God, Trinity God, they discussed about their plan about creating God. I mean, creating human being. और जब हम 26वीं आयत को अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब यहाँ पे जो त्रिएकत्र परमेश्वर का रूप है वो आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, आपस में ये योजना बना रहे हैं कि हम मनुष्य को किस प्रकार से बनाएंगे। And after creating us in His image, He said, "You need to rule over everything, all other creations." और जब उन्होंने हमें बना लिया, मनुष्य की रचना हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो सारी बाकी की जो सारी सृष्टि है उस पर अधिकार रखेंगे। So in the ancient time, you can see when one nation rule over another nation, when they gain victory over another nation, they would build a statue of the king. और जब हम देखते हैं कि एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर प्रारंभिक समय में चढ़ाई करता था और उससे युद्ध करता था और जीत जाता था, तो वो अपने राजा की एक मूर्ति वहां बनाया करता था। Then this nation who has lost the battle, they would come before the statues and they will kneel down before the statue of the king. That means they will submit to the ruling of the king. और जो राष्ट्र हार जाता था वहां के नागरिक आकर उस राजा की मूर्ति के सामने आके दंडवत किया करते थे और उसका ये मतलब होता था कि वो उसको उसके अधीनता में आ रहे हैं, उस राजा की अधीनता में। Although that statue is not the king, but it had the image of the king, that's why people understand that we're going to submit to this king. हालांकि वो जो मूर्ति होती थी वो स्वयं राजा नहीं था, लेकिन लोगों का ये विचार था, उनकी यह सोच थी कि हम जो है उसके सामने दंडवत कर रहे हैं तो हम उसी राजा को के अधीनता में आ रहे हैं। So God putting His image on us, that means God has also appointed us as His steward or representative. परमेश्वर ने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया, इसका अर्थ है कि उसने अपना जो एक प्रतिनिधित्व है वो हमारे अंदर दिया है। So with God's image as a steward of God, we're supposed to rule over all the creation. तो जो हमें परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कार्य है कि हम सभी जातियों पर हम राज्य करें। Let's open Psalm chapter 8 verse 4 through 8. आइए निकालते हैं भजन संहिता उसका 8वां अध्याय। Psalms chapter 8 verse 4 through 8. 8वां अध्याय उसकी 4 से लेके और 8 आयत तक। यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती।
पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। आमीन। So verse 5, you have made I'm them. sorry, sister, I'm sorry. I read Job instead of Okay. Psalms. Oh, it's okay. Psalm Yeah. chapter 8, verse 4 तो through फिर 8. मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। So Amen. here we can see that God made human being a little lower than God himself. यहाँ हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। In verse 5, some translation would say that little lower than the angels, or other translation would say that a little lower than Elohim, God himself. So I don't know which translation you have, but either way you can see how God has created them in a very highly level. कुछ जो ट्रांसलेशंस हैं उनमें हमें ये मिलता है कि परमेश्वर के नाम की जगह हमें एलोहिम वर्ड मिलता है, या कई जगह स्वर्गदूत मिलता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से, या एलोहिम जो स्वयं परमेश्वर है, उससे थोड़ा ही कम बनाया है। And God crowned them with glory and honor. और परमेश्वर ने उन्हें महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। So glory and honor, these are the two words that are used to describe kings in the Bible. महिमा और आदर ये दो ऐसे शब्द हैं जो राजाओं के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं बाइबल के अंदर। So we can see that God has created mankind as the kingly beings. तो हम देखते हैं कि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने एक राजाओं के समान बनाया है। Let's open Genesis chapter 5 verse 3. और हम निकालें उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। आमीन। So here we can see that Adam has his son in his own likeness, in his own image. और यहाँ हम देखते हैं कि आदम का जो पुत्र हुआ वो उसी का स्वरूप और उसी की समानता में हुआ। We know that our children would look like the parents. हम जानते हैं कि जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो माता पिता के समान ही दिखाई देते हैं। So when this same expression was used for creation of mankind, we can understand that God created us as his children. जब यही सेम अभिव्यक्ति परमेश्वर के बारे में प्रयुक्त होती है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति की जो रचना की है वो अपने स्वरूप और समानता में की है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि उसने हमें अपने बच्चों के समान बनाया है। So for those who have children, you may understand the relationship very easily. And for those who do not have the children yet, you can imagine how your parents have loved you. जिन लोगों के पास अपने खुद के बच्चे हैं और जो माता पिता हैं, वो ये आराम से अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या संबंध है जो एक माता पिता और बच्चों के बीच में होता है। So that relationship is just like the father and the children relationship. और ये जो संबंध है वो एक पिता का और एक बच्चों के बीच का संबंध है। So recently my friend gave a birth to a daughter. और अभी हाल ही में मेरी एक मित्र हैं जिनकी एक बेटी उत्पन्न हुई है। The daughter, she doesn't do anything for her parents. जो छोटी बेटी है वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करती है। She cries when she's hungry, she sleeps, and when she's angry she would cry again. वो रोती है जब वो उसे भूख लगती है, वो सो जाती है, और जब वो फिर से उठती है वो फिर से रोती है जब उसको भूख लगती है। But when my friend look at her daughter, they take such a great pleasure. और जब मेरी वो मित्र अपनी बेटी की ओर देखती है उसकी तरफ, तो उसको बहुत ही आनंद और बहुत खुशी होती है। And even before she was born, they prepare everything, all the food, all the clothes. That's how God was doing for mankind. और जब उनके यहाँ पे बेटी पैदा होने वाली थी, उससे पहले ही उसके आने की उन्होंने सारी तैयारी की, उसके भोजन की, उसके कपड़ों की,
और यही सेम बिल्कुल हम समानता देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी मनुष्य जाति की रचना करने से पहले ऐसा सब कुछ किया. So God first created everything, and then he created the Garden of Eden. After that, he put the man there. तो परमेश्वर ने भी सेम ऐसे ही तैयारी की. उन्होंने अदन की वाटिका को बनाया, सब चीजों को बनाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मनुष्य को उसमें रखा. God was very pleased to see the man. He was very happy because God loved mankind. और मनुष्य को देखकर परमेश्वर बहुत खुश हुए, वो बहुत आनंदित थे क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं. And let's open Colossians chapter 1:15. और आइए हम निकालते हैं कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय. Colossians chapter 1:15. यस, उसका 15वीं आयत. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है. So here the Son refers to Christ Jesus, and he is the image of invisible God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुत्र है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देता परमेश्वर. And mankind was also created as the image of God. और मनुष्य जाति को भी परमेश्वर की समानता में ही बनाया गया. So although mankind, that does not mean the mankind was the Christ. No, it does not mean that. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मनुष्य जाति है वो ही मसीह है. But we can imagine that God created mankind in such a precious way, and we were similar to the Christ. पर हम ये समझ सकते हैं कि मानव जाति को परमेश्वर ने बड़े ही अनमोल तरीके से बनाया और हम मसीह के ही समकक्ष ही हैं, उसी के समान ही हैं. It's actually very difficult for us to imagine how it will be like. और ये हमारे लिए बहुत कठिन है ये कल्पना करना कि ऐसा कैसे हो सकता है. Because now the image has been God's image has been so broken and lost. क्योंकि आज के समय में परमेश्वर की जो छवि है वो बहुत ही ज्यादा टूट गई है. Because when we have this God's image and likeness in us, that means when other people look at us, they will be able to see God. जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाए हैं, तो इसका मतलब जब दूसरे लोग हमें देखें तो उन्हें हमारे अंदर परमेश्वर ही नजर आने चाहिए. And we were supposed to enjoy this state of being kings over other creations. और हमें इस स्थिति को बहुत ही आनंद लेना चाहिए, इस स्थिति का कि हमें परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर राजा नियुक्त किया है. And we were the children of God, and we are even similar to the Christ. और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और हम मसीह के समान ही हैं. And God also blessed the mankind. और परमेश्वर ने मानव जाति को आशीष दी. If you look at Genesis 1:28, यदि आप उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत को देखें. Please read Genesis chapter 1:28. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. आमीन. So this was God's original plan. तो परमेश्वर का जो वास्तविक योजना थी वो यह थी. God wanted to fill the whole earth with his image. परमेश्वर पूरी सृष्टि को अपनी ही स्वरूप के अनुसार भरना चाहता था. And God wanted to use our lives to do that. और परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता था ऐसा करने के लिए. And let's open Genesis chapter 2. हम खोलें उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय. I'm going to go through some verses. और हम यहाँ कुछ वचन पढ़ेंगे. If you look at verse 2, it says God took the rest after on the 7th day. और जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया. God rested from all the work. परमेश्वर उस सारे कार्य को करने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया. Not because he needed rest. ऐसा इसलिए नहीं कि वो विश्राम चाहता था. Because we know that God doesn't sleep. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी सोता नहीं है.
but rather God wanted to provide rest and peace to mankind. पर इसके द्वारा परमेश्वर पूरी मानव जाति के लिए एक विश्राम और शांति को लाना चाहता था। So mankind, when we were first created, when we were with God, we had perfect rest. तो जब मानव जाति को पहली बार जब रचना की गई तो हमारे अंदर वो पूर्ण विश्राम था। But today, people have lost the true rest and peace in their heart. लेकिन आज के समय में सभी इंसान अपने हृदय में उस संपूर्ण विश्राम को और शांति को खो चुके हैं। People are always worrying about certain things. They are always being chased by certain things. और हमेशा लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं और उनका कोई ना कोई ऐसी विचार उनका पीछा करते रहते हैं। People go on a vacation or drink wines or trying to watch movie to have some rest. But they will always, after that, it's temporary and they will always go back to their daily conflicts. और लोग सोचते हैं कि उस शांति को प्राप्त करने के लिए, विश्राम को प्राप्त करने के लिए वो छुट्टियों पे जाते हैं, वो ड्रिंक्स के लिए जाते हैं, पिकनिक्स पर जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं, क्योंकि वो सब कुछ बहुत ही टेम्पररी है और बहुत कम समय के लिए रहता है, जब वापस आते हैं तो उनका स्थिति समान हो जाती है। But original man, they had true rest and peace in God. लेकिन जो वास्तविक मनुष्य था वो उसमें उसके पास पूर्ण शांति और पूर्ण विश्राम था। And through verse 8 and 9, we can see that God created everything there, and then He put the man in the Garden of Eden. और जब हम 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सारी चीजों को रचा और उसके बाद मनुष्य को उसके अंदर रखा। There were all kinds of trees and there were river flowing with water. वहाँ पे बहुत तरह के पेड़ थे और वहाँ पर नदियां थी। There was gold and great jewelries. और वहाँ पर सोना था और बहुत सारे वहाँ पे जवाहरात थे। So everything man needed was there. और जो कुछ मनुष्य को आवश्यकता थी वहाँ पर परमेश्वर ने वो बनाया। God provided them everything. और परमेश्वर ने उनको हर एक चीज को पहुंचाया। And verse 15, the Lord God took the man and then He led the man to work and take care of the garden. और तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 15वीं आयत। So that time working was not a pain. तो उस समय काम करना एक दुखद अनुभव नहीं था। Today we work to survive. लेकिन आज हम काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। But that time work was actually a blessing. लेकिन उस समय काम करना एक आशीष थी। Mankind, they did not work for survival. They actually worked to fulfill the plan of God. उस समय जो मानव जाति काम कर रही थी वो जिंदा रहने के लिए नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए था। And also verse 18, God created woman for the man. और 18वीं आयत में हम पाते हैं कि नर के लिए नारी भी परमेश्वर ने बनाई। God said, I will make a helper suitable for him. और परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। But helper for what? एक सहायक किस चीज के लिए? God created woman to help the man to fulfill the plan of God. और परमेश्वर ने आदम के लिए एक हेल्पर यानी एक सहायक बनाया ताकि वो दोनों मिलकर किस चीज के लिए सहायता करना था कि परमेश्वर की योजना को वो पूरा कर सके। हेलो 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 yeah, can you hear me, sister? Yeah, hello. Yes. So God created women to fulfill the plan of God. So परमेश्वर ने एक नारी की रचना की ताकि वह परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। Because God said, increase in number, fill the earth, subdue it, and fill the earth. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप अपनी संख्या में बढ़ जाओ और पूरी पृथ्वी को भर दो। So he cannot do that by himself. और वो नर जो है वो अपने आप से, आदम जो है वो अपने आप से ऐसा नहीं कर सकता था। God gave them family, the blessing of family, so that they can help each other to fulfill the plan of God. और परमेश्वर ने उन्हें एक परिवार की आशीष भी दी ताकि वे सब मिलकर परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें।
Remember how God's plan was to fill the whole earth with the image of God. और याद रखिए कि किस प्रकार परमेश्वर की ये योजना थी कि पूरी पृथ्वी को परमेश्वर की उस छवि के द्वारा भर दिया जाए. It's not just about having many babies. Sorry sister. It's not just about having many babies. और ये केवल सिर्फ बच्चों को उत्पन्न करने के लिए सीमित नहीं था. But that time Adam and men and women, they had the image of God, so increasing number was increasing the image of God. पर उस समय क्योंकि मनुष्य में आदम और हवा में परमेश्वर का स्वरूप था, तो बच्चे उत्पन्न करने का मतलब था कि पूरी पृथ्वी को परमेश्वर के स्वरूप के जो मानव जाति होती, जिसमें परमेश्वर का स्वरूप होता, उससे भर दिया जाए. In verse 19 we can see that God sent all the animals to Adam. और 19वीं आयत में हम देखते हैं कि जो सारे जंतु थे, जो जानवर थे, वो परमेश्वर आदम के पास लेकर आया. And now Adam, the man, is naming all the animals. और अब आदम जो है उन तमाम जानवरों का नाम रखता है. We can see that he had great wisdom. और हम ये देख सकते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी. Because you know that when you try to name your children, it was very difficult, right? और हम ये जानते हैं कि जब हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए. But when Adam was naming this animal, and that became its name. लेकिन जब जानवरों का आदम ने नाम रखा तो हमेशा के लिए उन जानवरों का वही नाम हो गया. That also means Adam had control over the animals. He had great influence over them. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आदम का बहुत ज्यादा प्रभाव था उन जानवरों के ऊपर. And afterwards, और उसके बाद later on we can see that Adam how he confessed that this is now bone of my bones and flesh of my flesh. और हम देखते हैं कि उसके बाद 23 आयत में कि जब हव्वा को परमेश्वर आदम के पास लेकर आया तो वो ये कहता है कि ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है. So these were all the blessings that God allowed mankind. तो ये सारी आशीषें थी जिसमें कि मानव जाति को परमेश्वर ने अलाउ किया. So you know they had all the food and gold and water provided. उनके पास बहुत सारा भोजन था, पानी था, सोना था, और वो परमेश्वर ने उनको दिया था. And they had this great wisdom. और उनके पास बहुत अधिक बुद्धि थी. And God also allowed family. और परमेश्वर ने उनको परिवार की आशीष भी दी. Well, let's go back to verse 7. और हम 7वीं आयत पे वापस चलते हैं. And it shows actually the greatest blessing that mankind received yet. और उस आयत में हमें वो सबसे बड़ी आशीष मिलती है जो कि पूरी मानव जाति ने ग्रहण की. Genesis chapter 2 verse 7. उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया. Amen. Amen. So God formed the man from the dust and he breathed his breath of life and then man became a living being. तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में उस जीवन की सांस को फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया. What is the dust? मिट्टी क्या है? Dust is nothing. मिट्टी कुछ भी नहीं है. You don't gather dust around and put on your shelf. आप कभी भी मिट्टी को उठाकर अपनी शेल्फ पर नहीं रखते हैं. There is no use of dust. वहां पे मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं है. But when God's spirit comes into the dust, लेकिन जब उसी मिट्टी में परमेश्वर की आत्मा आती है, when God breathed his breath of life into the dust, और जब परमेश्वर उस मिट्टी में अपनी आत्मा, अपनी सांस को डालता है, that's when the man became a living being. उस समय जो मनुष्य है वो एक जीवित प्राणी बन जाता है. Amen. So when man, it doesn't matter how many skills or wisdoms it has, तो ये बिल्कुल भी इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि कितना भी इंसान के पास कौशल हो, कितना भी उसके पास बुद्धि हो,
But this verse clearly tells us that it has life, it can have life when it's with God. और ये आयत हमें बड़ी साफ तरीके से ये बताती है कि उसके पास जीवन तभी हो सकता है जब उसके पास परमेश्वर है। That's how the mankind was created. और इस प्रकार से मानव जाति की रचना हुई थी। And that relationship between God and man और वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध था was based on love, God's love. वो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर आधारित था। And everything was given by God's grace. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उसको सब कुछ दिया था। So in order for the mankind to enjoy that blessing continuously, तो लगातार उसी आशीष को आनंदित होते रहना, उसी आशीष में मनुष्य जाति को क्या चाहिए था? there's only one thing they had to do. केवल एक ही काम था जो उनको करना था। They needed to remember who God is. उनको केवल ये याद रखना था कि परमेश्वर कौन है। They had to remember that God is the creator, God who created them. उनको केवल ये याद रखना था कि उनका सृष्टिकर्ता जिसने उनकी रचना की वो परमेश्वर है। They had to remember that God is their Lord. उनको ये याद रखना था कि परमेश्वर ही प्रभु है। Although they are the kings before all other creations, they need to remember that God is their king. और जो सारी सृष्टि है, जब उनके पास एक राजा होता है, तो लेकिन उससे भी पहले उनको ये याद रखना होता है कि उन राजाओं के ऊपर भी एक राजा है जो परमेश्वर है। Although they can rule over all other animals and creations, but that authority comes from God. हालांकि वो सारी पशुओं पर और सारी रचना जो सृष्टि पर अधिकार रख सकते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए ये सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं। They had to remember that God is their father and God is source of their life. उनको ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उनका पिता है और वही सारे जीवन का सोता है। As long as they remember who God is, as long as they respect that relationship, then they can enjoy this blessing continually. जब उनको ये याद रहता है कि परमेश्वर ही उनका पिता है और जब उन्हें ये पता होता है कि परमेश्वर की ओर से उन्हें सारी आशीषें मिलती हैं, तभी वो इस आशीष को लगातार रीति से आनंद ले सकते हैं। God really wanted them to enjoy the blessing. और परमेश्वर सच में चाहते थे कि वो इसका आनंद लें, इन आशीषों का आनंद लें। God wanted them to enjoy the relationship. परमेश्वर चाहते थे कि वो इस संबंध का भी आनंद लें। That's why God gave them the covenant. इसीलिए परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी। Let's look at verse 17. आइए हम 17वीं आयत को देखते हैं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। It's not that the tree was the tree did not have a special power. उस वृक्ष में, उस पेड़ में कोई भी विशेष शक्तियां नहीं थी। God actually picked a very easy covenant to keep. परमेश्वर ने एक्चुअली बहुत ही आसान आज्ञा उनको दी थी। God could have said, okay, there is one rock and you are not supposed to step on it. परमेश्वर ये भी कह सकते थे कि वहां एक चट्टान है और आपको उसके ऊपर पैर नहीं रखना है। God could have chosen one river and saying that you can enjoy all other things, but just to not jump into that river, you will certainly die. परमेश्वर किसी एक नदी को चुनकर ये कह सकते थे कि उस नदी में बिल्कुल भी मत जाना और नहाना, नहीं तो तुम सच में मर जाओगे। But instead of that, God chose that tree and said, you should not eat from this tree. और लेकिन इस सब के बजाय उन्होंने केवल उनको एक पेड़ दिखाया और ये कहा कि उसका कोई फल कभी मत खाना। God gave this covenant so that mankind would remember who God is whenever they look at this tree. परमेश्वर ने ये वाचा उनको इसलिए दी, ये आज्ञा इसलिए दी कि जब भी वो उस पेड़ को देखें तो वो परमेश्वर की वाचा और उसकी आज्ञा को याद रख सकें। They will, whenever they see the tree, they will remember that, wow, God is our creator. We need to obey him. जब भी वो उस पेड़ को देखें तो उनको ये याद रहे कि परमेश्वर उनका सृष्टि करता है और हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। And maybe God allowed that tree as certain line
that they should not go over. हो सकता है कि परमेश्वर ने एक लाइन खींची हो उस पेड़ के चारों ओर कि वो वहां तक ना जा सके. Imagine that you have a very nice parents. कल्पना कीजिए कि आपके बहुत ही अच्छे माता पिता हैं. They provide you everything. वो आपको सब कुछ देते हैं. They love you so much. वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं. And sometimes you feel like they're just like your friends. और कभी-कभी आपको ये लगने लगता है कि वो आपके मित्रों के ही समान हैं. But if you go over certain, although they're very close to you, if you go over certain line, हालांकि वो आपसे बहुत ही नजदीक होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी किसी भी एक सीमा को पार करते हैं and you start to not showing respect towards your parents, and you start to really act that they're your friends, और आप उनकी आदर करना छोड़ देते हैं और आप ये दिखाने लगते हैं कि वो आपके मित्र ही हैं, then that relationship will have a problem, right? तो उस संबंध में एक परेशानी, एक मुश्किल आ जाती है. So God really wanted them to remember who God is and who they are before God. तो परमेश्वर ये चाहते थे कि मानव जाति हमेशा ये याद रखे कि परमेश्वर कौन है और मानव जाति परमेश्वर की क्या है. And actually, I can see God's love when God gives this covenant to mankind. और वास्तव रीति से मैं परमेश्वर का प्रेम देख पाती हूँ कि जब उन्होंने ये आज्ञा मानने के लिए मानव जाति को कहा. Because mankind can enjoy this blessing and relationship as long as they respect God, worship God, and believe in God. जब तक वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तभी तक वो ये संबंध, मानव जाति ये संबंध जो है परमेश्वर के साथ, उसका आनंद उठा सकते हैं. So after setting up the covenant with mankind, तो जब परमेश्वर ने वो वाचा मनुष्य के साथ बांधी, if men and women they went out to, let's say, swim in the river, तो जब वो नर और नारी उस नदी में नहाने के लिए गए, that means they're not eating the fruit and they're just swimming in the river. That means they're worshiping God. तो इसका ये मतलब है कि वो उस वृक्ष का पेड़ नहीं खा रहे हैं, वो तो उस नदी में स्नान कर रहे हैं. इसका मतलब वो परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं. So if they sleep or they wake up and they eat from other trees, that means they're keeping God's covenant and they're respecting God. तो अगर वो नर और नारी सो रहे हैं या जाग रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं उस वाटिका में, लेकिन उस पेड़ का फल नहीं खा रहे हैं और उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं. So by giving out this covenant, setting up this covenant, the whole life of Adam and Eve turned into a one great worship. तो ये आज्ञा और ये वाचा देने के पीछे परमेश्वर का यह उद्देश्य था कि आदम और हव्वा की पूरी जिंदगी एक आराधना वाली जिंदगी बन जाए. And it was such an easy covenant to keep. और ये एक बहुत ही आसान वाचा थी. God didn't say you need to bring millions of dollars if you want to continue this relationship. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आपको बहुत करोड़ों डॉलर्स लाने होंगे अगर आप इस संबंध को रखना चाहते हैं. You just listen to my words, believe in my words, and trust me and love me. उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तुम मेरे वचन को सुनो, उसको मानो, मुझ पे भरोसा रखो और मेरी बातों को मानो. And God did not make this covenant with any other animals. और किसी अन्य पशुओं के साथ उन्होंने ये वाचा नहीं बांधी. So it was very special covenant given to mankind so that they can enjoy this relationship with God. इसलिए एक बहुत ही विशेष आज्ञा थी जो कि परमेश्वर ने केवल मनुष्य को दी थी ताकि वो उसके साथ उस संबंध का आनंद ले सकें. And through this we can see that the blessing, the greatest blessing mankind received was this intimate relationship with God. और हम ये देखते हैं कि इस आज्ञा के द्वारा जो आशीष मानव जाति ने ग्रहण की, वो थी परमेश्वर के साथ एक बहुत ही अंतरंग संबंध. They were created to God. They were connected to God. They were in God, and they were under God's control. That is the greatest blessing. वो परमेश्वर के अंदर थे, उसके कंट्रोल में थे और उसके साथ उनका एक अंतरंग संबंध था. और यही सबसे बड़ी आशीष थी जो मानव जाति को परमेश्वर ने दी थी. Because God is source of life. He's source of all the good things.
क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का सोता है और सभी अच्छी वस्तुएं उसी के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। He's source of all the blessings, source of all the goodness. वो सारी आशीषों और सारी अच्छाई का सोता है And you are connected to that. और आप उससे जुड़े हुए हैं। What else do you need more? उससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? That was how we were created in the first place. और हम लोग इसी प्रकार से हमारी रचना की गई। So many people, however, don't know about this. और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। Because when we look at each other, when we look at today's humanity, we don't really see this. क्योंकि आज जब हम इंसानियत में दूसरे इंसानों को देखते हैं तो हमें सचमुच में ये दिखाई नहीं देता। Many people, when they encourage some people who are having a problem, they would say like this. कई लोग जब दूसरे लोगों को मुश्किलों में देखते हैं तो उनको उत्साहित करने के लिए वो इस प्रकार से कहते हैं, Oh, cheer up, this will also pass away, this is life. वो ये कहते हैं, अरे ये तो जीवन है, ये चलता रहता है और ये भी गुजर जाएगा, इसलिए आप खुश हो जाएं। Life sometimes bring you sour lemon, you just need to endure, time will heal you. They will say things like this. वो इस तरह से आपको बोलेंगे कि अरे जीवन में ऐसे अनुभव हमें मिलते रहते हैं और ये सब ठीक हो जाएगा और समय जो है आपको चंगा कर देगा। Because people are not aware of the original state of mankind. क्योंकि इंसानों को मनुष्य की वो जो वास्तविक स्थिति थी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। We don't know what we have lost. हमें ये नहीं पता कि हमने क्या खोया है। We originally have all these blessings. हमारे पास वास्तविक रीति से ये सारी आशीषित थी। But something happened and we lost all this. लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसके द्वारा The image of God has been lost. हम सब कुछ हार गए और परमेश्वर की वो स्वरूप जो है वो हमसे दूर हो गया। Because we have been cut off from this source क्योंकि of हम everything. उस सभी चीजों के उस सोते से हमारा संबंध टूट गया। And this problem is so severe. और ये जो समस्या इतनी कठिन समस्या है that God had promised the Messiah, the Christ. कि परमेश्वर ने मसीहा के बारे में वायदा किया। Tomorrow we're going to talk about what is the essential problem of mankind. और कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो बहुत ही जरूरी समस्या है मानव जाति की वो क्या है। But and we'll be able to see that this the problem that we are in, the problem we are facing is very, very serious. और हम ये देख पाएंगे कि जो समस्या हम जिसका सामना हम कर रहे हैं, जिस समस्या में हम हैं, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। So how would you understand that the damage is so great to something? अब आपको ये किस प्रकार से पता चलेगा कि जिस चीज से हमें जो हानि हुई है किसी चीज से, So for example, when you break the window, maybe you need to pay $100 for the broken window. अगर आपसे कोई खिड़की टूट जाती है तो हो सकता है कि आपको उसको भरने के लिए $100 देने पड़े। But if you just hit the very expensive car, then maybe you need to pay thousands of dollars. और यदि आपको एक बहुत महंगी कार को चोट पहुंचाते हैं, उस पर मारते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत हजारों डॉलर देने पड़े उसकी भरपाई करने के लिए। So you can understand how serious the damage is by the compensation that you are supposed to make to cover that damage. तो जो भरपाई करने के लिए आप जो जुर्माना भरते हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हानि आपने उस चीज को पहुंचाई है वो कितनी बड़ी है। The damage that happened to mankind was so severe. मानव जाति को जो हानि पहुंचाई गई, जो पहुंची, वो इतनी ज्यादा थी। The Son of God has to come to the earth. कि परमेश्वर के पुत्र को इस जगत में आना पड़ा। The problem was so serious that God had sent His one and only Son. वो समस्या इतनी गंभीर थी कि परमेश्वर को अपना एक ही इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा। It was so serious that Messiah had to come. वो इतनी गंभीर थी कि मसीहा को आना पड़ा। So although it's difficult for us to
imagine how how we were originally when we were first created in His image. और हमारे लिए ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि जब हम पहले प्रारंभिक रूप में हम जब हमारी रचना हुई, हमें बनाया गया, तो हमारी वास्तविक स्थिति कैसी थी. But God has promised to restore that image through the Christ. लेकिन परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि क्राइस्ट में होकर हमें वो सारी चीजों को की भरपाई करेगा. Because Christ is the image of God. क्योंकि क्राइस्ट ही परमेश्वर का स्वरूप है. And if we truly believe in Jesus, who is the Christ, और यदि हम सच्ची तरीके से विश्वास करते हैं यीशु में जो कि मसीह है, and through Him we'll be able to restore God's image in us. और उसके द्वारा ही परमेश्वर का वह स्वरूप हमारे अंदर वापस से आ सकता है. And lastly, let's open 1 John chapter 3 too. और आखिर में हम पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, दूसरी आयत को देखेंगे. 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. आमीन. So Apostle John is saying when the Christ comes, तो यहाँ प्रेरित यूहन्ना ये कह रहे हैं कि जब मसीह आएगा, we shall see him as he is, हम उसको वैसा देखेंगे जैसा कि वो है, and we shall be like him. और हम भी उसके समान होंगे. An original plan of God will be fulfilled. और जो परमेश्वर की एक वास्तविक जो असली योजना थी वह पूरी होगी. So when we believe in the Christ, He's going to restore our image, God's image in us. तो जब हम यीशु में विश्वास करेंगे तो जो क्राइस्ट है, जो मसीहा है, वो हमारे अंदर परमेश्वर के स्वरूप को वापस से पूरा करेगा. And we'll be able to share the gospel, and also we'll be able to implement, or we'll be able to plant many images of God around us. और जब हमारे अंदर वो इमेज, वो परमेश्वर की छवि, स्वरूप जो है वो पूरा होगा, तो हम वही सुसमाचार दूसरों को सुना पाएंगे, दूसरों के अंदर भी यही काम हम कर पाएंगे. And on the last day when He comes, we'll be able to see Christ as He is, and we shall be like Him. और उस अंतिम दिन में जब क्राइस्ट आएगा, मसीहा आएगा, तो हम उसको देखेंगे जैसा कि वो सच में है, और हम भी उसके समान ही हो जाएंगे. And we'll reign with Him forever. और हम उसके साथ में रहेंगे हमेशा तक. So this image, so that was the message, lecture 2, the man, the blessed being. और यही आज का जो दूसरा शिक्षण था, मनुष्य जो एक आशीषित प्राणी है. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father God, we thank you. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं. We are able to see how you created us. हम ये देख पाए कि परमेश्वर आपने हमें किस प्रकार से रचा, and how we were blessed and how we had everything when we were with you. किस प्रकार से आपने हमें आशीषित किया और हमारे पास सब कुछ था जब हम आपके साथ थे. And now we understand the man was truly blessed being. और हम अब ये समझ चुके हैं कि सच में मनुष्य एक आशीषित प्राणी है. We thank you so much because you have allowed us to hear the gospel. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस सुसमाचार को सुन सकें. And we are so thankful because you have promised us to restore that image of God in us. और हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें ये वायदा किया है कि आप उस स्वरूप को हमारे अंदर फिर से पूरा करेंगे. God, use all these participants' lives. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी प्रतिभागियों के जीवन को to save Delhi and all parts of India. दिल्ली को और भारत देश के सभी भागों को आप बचाएं. In the name of Jesus Christ we prayed. Amen. यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor Mishnah Nina. Amen. 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 Hallelujah. Yeah, I can see the environment. Mr. Joyce, you need to keep your microphone on.
Yeah, let your microphone be on throughout yes. because you'll be Okay. translating. Yeah. So Okay, without wasting much time, we're going to go for intercession time. अब हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएंगे. So we're going to call on our own dear sister Neha George to lead us in intercessions for Delhi. और दिल्ली के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए हम सिस्टर नेहा जॉर्ज को आमंत्रित करेंगे. So we really want to pray that this gospel will flow to every part of Delhi. दिल्ली के हर एक भाग में यह सुसमाचार पहुंचे, हम ऐसी प्रार्थना करें. Yeah, so you can unmute your microphone, Sister Neha George. Yes. Yeah, thank you. Yeah, please, you can go ahead. अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और मध्यस्थी में जाएंगे. धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर पिता. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिखाया मेरे पिता. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता जो आपके पिता बेटी के द्वारा हमें दिया गया मेरे पिता परमेश्वर पिता. हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पूरी सभा के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता जिसमें आप प्रभु जी आपने हमें आने का ये मौका दिया पिता परमेश्वर पिता. पिता परमेश्वर आपके उन वचनों को सुनने का आपने हमें मौका दिया पिता. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता. हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी. पिता परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त पिता अपने दिल्ली शहर के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता. प्रभु जी जो आज का जो ये वचन यहाँ पे जो बोया गया है मेरे पिता परमेश्वर पिता, आज जो ये वचन यहाँ पे पिता हमारे बीच में जो बांटा गया है मेरे पिता परमेश्वर पिता, होने देना मेरे पिता परमेश्वर पिता. आज पिता जो भी हमारे दिल्ली के जो पिता जो लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज उनका उद्धार हो जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता. पिता परमेश्वर पिता जो यहाँ पे बताया गया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु की हम एक आशीषित प्राणी है मेरे पिता, हम ब्लेसेड लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता. तो हम उस चीज को पिता परमेश्वर पिता अपने जीवन में उसको हम ग्रहण करें मेरे पिता. पिता परमेश्वर पिता हमारे काम ऐसे हो मेरे पिता परमेश्वर पिता जो आपको आदर मान महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर पिता. हमारा पूरा भारत हमारा पूरी दिल्ली मेरे पिता परमेश्वर पिता आपके इस वचन को लेके मेरे पिता परमेश्वर पिता आपके नजदीकी में आए मेरे पिता परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर पिता. मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर अपने रिसोर्स पर्संस के लिए पिता, इवेंजलिस्ट नीना सिस्टर के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता जिनके द्वारा आज आपका ये वचन हमारे बीच में दिया गया मेरे पिता. होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर पिता ये वचन पिता परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 60 नहीं 80 नहीं पिता बल्कि 100 गुना प्रतिफल लाए मेरे पिता परमेश्वर पिता प्रभु. जबकि हम पिता परमेश्वर पिता यहाँ पे आपके उस वचन को जो हम सुनते हैं पिता सिर्फ सुनने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर पिता, उसको पिता प्रभु जी हम अमल करने वाले हो सके मेरे पिता. और खास करके हमारा ये दिल्ली शहर मेरे पिता परमेश्वर पिता जिसको यहाँ पे पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है इस समय मेरे पिता परमेश्वर पिता. उस उद्धार की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर पिता जो आपसे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपको जान नहीं अभी अच्छी तरीके से नहीं जान पा रहे मेरे पिता. तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन दिल्ली के लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता इस मैसेज के द्वारा पिता, इस पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर पिता आज उनके हृदय मेरे पिता ओपन हो जाए मेरे पिता. आज वो पिता परमेश्वर पिता आपके उन वचनों को अपने जीवन में वो ग्रहण करे मेरे पिता परमेश्वर पिता और उसको वो स्वीकार करे मेरे पिता कि आपने हमें अपने स्वरूप में जो रचा है मेरे पिता. तो पिता परमेश्वर हम एक आशीषित प्राणी है मेरे पिता. तो प्रभु जी हम आपके योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता. हमारे काम ऐसे ना हो मेरे पिता परमेश्वर पिता कि हम पिता परमेश्वर आपके सामने पिता परमेश्वर हम खड़े हो मेरे पिता, ऐसे हमारे काम पाए जाए मेरे पिता. जबकि पिता परमेश्वर दिल्ली जो शहर है मेरे पिता आपसे पिता परमेश्वर वो बहुत दूर है मेरे पिता परमेश्वर पिता. आपके नाम को पिता परमेश्वर वो सिर्फ जानता है लेकिन आपको वो फॉलो नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर पिता. तो होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर पिता आज अब वो आपका जो वचन जो यहाँ पे दिया गया है हर एक एक कोने में, दिल्ली के हर एक एक कोने में, हर एक उस इंसान के जीवन में पिता परमेश्वर पिता वो कार्यरत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता. आपके नाम से पिता परमेश्वर पिता मैं इस दिल्ली शहर को पिता आपके नाम से मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर पिता. होने दीजिएगा पिता परमेश्वर पिता आपका यहाँ पे अभिषेक पाया जाए, आपका यहाँ पे अनुग्रह उंडेला जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता. और ये दिल्ली शहर पिता आपके अनुग्रह में बढ़ता जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता. यहाँ पे आपका उद्धार हो मेरे पिता परमेश्वर पिता. यहाँ पे हर एक जन मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम को वो और पिता परमेश्वर और पूरे विश्व तक लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता. हम आपका
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर MWE के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर जो ये स्टेप उठाया है मेरे पिता, इस मिशन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमें से हर एक उन जन के लिए मेरे पिता, आपकी उन सन्स एंड डॉटर्स के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो इससे जुड़े हैं मेरे पिता। एक एक के ऊपर आपका अनुग्रह पाया जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम सब मिलके मेरे पिता परमेश्वर पिता आपके इस वचन को पिता परमेश्वर इस पूरे संसार में हम उसको फैला दे मेरे पिता परमेश्वर Lord. पिता। आपके इस Yes, वचन Lord. पिता परमेश्वर पिता हर एक Yes, के Lord. अंदर वो ऐसा कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर पिता Yes, कि पिता Lord. परमेश्वर हर एक जन पिता Man. परमेश्वर Yes, आपको अपने Lord. लिए Yes, वो Lord. स्वीकार कर ले मेरे पिता परमेश्वर पिता। Jesus. धन्यवाद Jesus. पिता परमेश्वर आपके इस अनुग्रह के लिए मेरे पिता कि आपने हमें Jesus. अपने लिए चुना मेरे पिता। यहाँ पे जो Yes, भी Lord. जन है मेरे पिता वो सिर्फ और Yes, सिर्फ Lord. आपके द्वारा बुलाया गया है पिता। तो हम Yes, प्रार्थना Lord. करते हैं प्रभु जी कि हमारा ये दिल्ली शहर का हर एक जन पिता वो भी आपके द्वारा चुना जाए मेरे पिता परमेश्वर Oh, पिता। yes, Lord. और यहाँ पे Yes, पिता Lord. परमेश्वर पिता आपका उद्धार हो मेरे पिता परमेश्वर पिता। यहाँ पे हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु आपकी नजदीकी में आए मेरे पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो Yes, पिता Lord. परमेश्वर पिता तमाम बातों के लिए पिता परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद Lord. करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर अपने पास थॉमस इनके लिए पिता परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें ऐसे रिसोर्स पर्संस दिए मेरे पिता जो हमें पिता परमेश्वर वो चीज जो हमें बता रहे हैं पिता परमेश्वर, जो हमें पिता परमेश्वर पिता आपसे कनेक्ट करती है मेरे पिता। तो और प्रभु जी हमें आपसे और वो जो रिलेशनशिप में जो Yes, बिल्ड कर Lord. रही है मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और मैं पिता परमेश्वर इस पूरे MWE को पिता आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर पिता। आप इसको और अपने लिए इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर पिता। Jesus. हम में से हर एक को अपने लिए इस्तेमाल करिए मेरे पिता और हमें से हर एक को अपने लिए आप बिल्ड करिए मेरे पिता Yes, परमेश्वर Lord. पिता। Yes, धन्यवाद Lord. के साथ पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण करा। मांग लेते अपने पिता परमेश्वर अपने यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। Glory to God. Amen. 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 We're still praying. We're still Amen. praying. Praise the We're Lord. still Amen. praying. Yeah, we're going to pray for the whole India. India. We want to pray for the world evangelizations of India. Yeah. हम पूरे भारतवर्ष के लिए भी प्रार्थना करेंगे Every blindness of Satan's will be removed in the heart of men and women in India. कि भारत के हर एक मनुष्य हर एक नर और नारी पर से शैतान ने जो अंधकार लाया है, जो अंधापन लाया है, वो सारा दूर होने पाए। That the light of the glorious gospel of Christ will shine in the heart of everyone in India. और मसीह का वो सुसमाचार की ज्योति भारतवर्ष के हर एक प्राणी के हृदय में जागृत हो जाए। That the word of the Lord will spread rapidly in India and will be received with honor among men and women. और परमेश्वर का वचन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही तेजी से फैले और सभी मनुष्य लोग उसको अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सकें। So let's call on Pastor George Paul to lead us in the prayer for specifically for India as a nation. Pastor George Paul, please, you can unmute your microphone. Yeah, you can unmute your microphone, Pastor George. Yeah, Pastor your mic. George. Yeah, please unmute your microphone. Yeah, you can go ahead, sir. Heavenly Father, I come before you in the name of Jesus. I thank you, Father God, for this day that you have given us, a Lord, and you have called us, a Lord, by name, APFCI, us, the torchbearers for this country, India. And I pray, Father God, this APFCI will carry for the message of MWE in every corner of India. And I pray, Father God, for release of your sons to carry forth your message of peace and this life only in Christ Jesus. Father God, I pray this evening, oh Father God, that your mercy released upon each and every one, oh Lord, in this country. And I pray, Father God, that your fire of your Holy Spirit will break every power of the darkness which is in this country upon the people of India. I pray, Father God, that your people
will receive a new heart, a new eyes, a new hearing ears, O Lord, to hear the good news that Jesus is the Christ. And Father God, I pray, Father God, that you will touch the heart of each and every one, O Lord, in this country, that they may receive the good news, O Lord, and turn away from every wickedness, and they repent and come to you, Father God, to receive your Son, Jesus Christ. Father God, I pray, Father God, that the message of Christ will be spread in each and every corner, O Lord, in this country. And I pray, Father God, that whom you have appointed, Lord, they will be enlightened, O Lord, with the full of energy to carry forth, the Lord, this word. And I pray, Father God, they will not be like the first generation, which they lost because of disobedience, the original peace and the life which was there in the mankind. And I pray, Father God, that you will touch each and every one of God, the mankind, with the same glory that Jesus have and the God released upon the mankind of God. And I pray, Father, that you will enlarge this world evangelism, WEM, into the every city, O Lord, every village, every corner in this country of India. And I pray, Father God, that your love will be reached, the love of salvation, love of life in Christ Jesus to every corner, O Lord, because you are the living God and your eyes are upon India. And I pray, Father God, that your mercy will release everyone, O Lord, from this bondage of wickedness, and to know and to receive that your grace, your understanding that Jesus Christ is your Son and Savior, and whom you appointed, Lord, as the Lord and Christ. And I pray, Father God, for each and every one of the ruling department, O Lord, in this country. They may receive this understanding, O Lord, that you alone are the living God, and the life is in the living God. I pray, Father God, that your mercy upon each and every one of God. And I pray that you will open the ears, open the understanding of the mankind, O Lord, in India, that you are the creator, that they will come to the creator, not to the creation, O Lord. And I pray, Father, that your mercy once again touch every corner, every village, that every mankind in the entire country of India, that they may be saved and will become that your sons, for your to fulfill your desire, Lord. For you said, Lord, it is your desire to see every mankind to be saved. And I pray, Father God, that your word be accomplished in this country, India, that every mankind will be saved, O Lord. I make this prayer, O Lord, in the name of Jesus. And I thank you, Father God, for your appointed ones, O Lord. I thank you, Father God, for Mr. Thomas Adesina, and that your missionary, Nina, whom you are appointed to bring this message into us. And I thank you, Father God, for our spiritual leaders, Apostle Richie J. Hosley and Apostle Lily D'Souza, whom you placed over us, O Lord, that this mission which you started, Lord, will be accomplished, and that we will be led according to your plan and purpose. Yes, and I Lord. pray, Father, in the name of Jesus, Yes, that your Lord. blessing of salvation, the goodness and the life that is in your Son Jesus Christ, our Lord and Savior, Jesus Christ, will be accomplished, Father God, in your way, in your time, O Father. In Jesus' name I will pray. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Thank you so much, Pastor George, Amen. for the Hallelujah. apostolic prayer. Hallelujah. That's so deep. Thank you so much, Amen. Nia George. Thank you so much. And we really want to thank God for today, that God has been able to move us forward. Yeah, so we are going deeper. We are going deeper. And by the time we go to the 12th lectures, I want to believe that many of us will not be able to contain the fire of the revelations
of Christ in our lives, you become unstoppable. See, unstoppable in your family. So everywhere you go, we're going to fill every community with this gospel. So upon this note, we're going to call on the Apostle Lily to acknowledge and to thank everyone who has been able to participate today. Yeah, Apostle Lily, over to you. I want to thank God for this opportunity this evening in the name of Jesus, for especially for giving good health to Pastor Thomas Adesina. It is not only that he is doing this 1 hour session here with us. I want you, each one of you, to keep praying for him. I acknowledge with all my heart, also for Evangelist Nina, because they are continuously hour by hour reaching to different nations. I've been watching them, following them, to different nations, different cities. They've been left, right, center. And also I want to thank God for Dr. Ravi. All of you, आप सभी लोगों ने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ ये 1 घंटे की सभा नहीं ले रहे हैं, ये सारा वक्त घंटे के बाद घंटे अलग अलग राष्ट्रों में इसी तरह चला रहे हैं, और मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है. सो सभी लोग पास्टर थॉमस रिसीना को और इवेंजलिस्ट नीना को, जो बहुत खूबसूरती से वचन ला रही है, और ऑल्सो डॉक्टर रवि जो ओवरसीयर है, लीडर फॉर इंडिया, इनके लिए रोज प्रार्थना करें. यू नीड टू प्रे फॉर देम डेली, and also for the other leaders which we are not well versed with now, but in coming time we will be meeting them too. I also want to thank God for Joyce doing a wonderful translation. Bless you, daughter, that you may excel more. This is going off. I pray, Father, that you would raise up prayer warriors each week, and every warrior should get the revelation. I want to thank you, Father, that तुम सभी को इसका प्रकाशन मिलना चाहिए. When you're praying, be on point, be on dot. Seek God and pray rightly, pray properly. There is a purpose why they are asking you all to do intercession. That Jesus is the Christ. Has to be the purpose. Yeah, we all pray long prayers, different prayers. I know we are all learning. This is new. But I want you to be saturated in that, so that जब आप दिन भर में जो वचन या शेयर किया जाता है, जो lessons तुम्हें दिया जाता है, उन्हें acknowledge Nina very beautifully. Nina is Evangelist Nina. I spoke to all my people, and everybody want to give a big clap and acknowledge Evangelist Nina. All those who are not clapping, I don't know why you're not clapping. She has come out so beautifully, so beautifully. We want to bless you for your clarity, simplicity, very simple. And because you preach simple, Joyce, my daughter, could translate simple. Yeah. So the Hindi language people are blessed. Yeah. I spoke with all of them, and I asked the feedback from the Hindi crowd. And I'm so thankful for the most of them who gave a very, very good, positive answer. Unhe samajh mein aa gaya. So because your language is simple, I acknowledge you with all my heart, Evangelist Nina. Thank you. Thank you. And all those who have joined me for the first today new, all those who have come in, acknowledge you all over here. I want to thank God for all of you who were yesterday and have continued today. So each one of you, I want to really thank God for all of you. You're around 45, 46, 47 today. And so in all totality, I want to welcome you and thank you. और बने रहो, और ये कल का एक आखिरी दिन है. So for tomorrow, we are believing God for something very powerful, एक revelation, प्रकाशन, कि आप उसे पकड़े, कि यीशु को आप जानते हैं, प्रभु को आप जानते हैं, क्रिस्त को आप जानते हैं, लेकिन क्रिस्त की गहराई जो हमें सिखाई जा रही है in the 12 lessons. So I believe that, the 12 lessons, 12 lesson होते तक, you will be saturated about Jesus is the Christ. Amen. And that's the power of salvation.
Thank you everybody once again. और कल शाम में tomorrow evening again हम 7 बजे मिल रहे. कल का तीसरा दिन होगा. इस हफ्ते का कल लास्ट दिन है और नेक्स्ट वीक में हम वापस 3 दिन करेंगे. अब मैं आपके पर्सनल पे सब पे मैसेज भेज रही हूँ. I will send you details. Thank you and a big God bless you. Thank you Pastor George and thank you daughter Neha for the wonderful way that I'm so happy for you to connect to Father God. From God to Father God. I've seen you growing. Well done. And we will better up more. The more you understand right, the more you speak right. When you don't get it here, you don't get it here. In your heart, it is there. So, आपकी प्रार्थना बताती है आप क्या समझे. Your prayer allows us to know how much you understood. This is not judging, not condemning, not discouraging, but we as leaders here have to bring the correction because we are on a vision, we are on a mission, and God is our provision. So when you pray, everybody will be getting an opportunity to pray. Your prayer language will let us know how much you understood and did you catch the revelation. Because revelation sikhaya nahi jata, you need to catch it. It is caught, it is not taught. And it comes from God's heart. So thank you once again, Pastor Thomas. I am praying every day, continuous, whenever I think of you, for good energy. Thank good you. health. I receive it. Amen. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much. And you be on the move. I understand that because I'm on a move person and I know what it takes. It takes a great passion. Yes, it takes a great glory. And may it be added unto you and also to Nina and all to the other leadership also. Amen. Thank you so much. Amen. 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 Let's give it to Apostle Lily. Let's give it to Apostle Lily. Thank you so much. Thank you. Really appreciate you. Bless you. And upon this note, Sister Joyce, upon this note, we're going to bring this meeting to a close. और इस बात के द्वारा हम इस मीटिंग को एक आखिरी चरण पर लेकर आते हैं. So we want to say from South Korea, we want to say good night. साउथ कोरिया की तरफ से मैं आप सबको शुभ रात्रि बोलना चाहता हूँ. And from every part of Delhi and India you come from, I want to say have a wonderful evening and enjoy your night. और जिस भी भारत के जिस भी क्षेत्र से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबको मैं एक बहुत ही खूबसूरत रात्रि की मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ. And remember, you are not alone. From South Korea, we are praying for you, and all the international disciples in Africa, all over the world, are praying for Delhi. और ये ना सोचिए कि आप लोग यहाँ अकेले हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी चेले हैं, वे सभी जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो सभी आप सबके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं. So you can unmute your microphone to exchange greetings while we say good night, love you. Thank you, Pastor Thomas. Yeah. Good morning, Pastor Nina. Thank you, Dr. Ravi. Thank you, Nima. Thank you, everyone. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Pastor Pastor, good night. Everyone. Good night. Pastor Thank you. Pastor Nia, Bye. Pastor Kuma. Bye. Good night. Good night, Pastor Yoda. Thank you, Pastor Thomas. Thank you, Sister Nina. Yeah, good night. Thank you. Good night, Pastor. Good night. Bye. All my sons and daughters, just come back to Zoom. As we leave this, come to Zoom. Need to talk to you. Yeah, good night. All the sons and daughters, come to Zoom. Yeah. Yes, ma'am. Bye. Yeah, see you. Good night.